Okay, now see chapter number 7, Glimpses of India. Okay, and in this chapter there are 3 parts. First part is a baker from Goa. You have to study this part. Let's start. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. It means that here is description. Pen portrait means description, okay, written description of a traditional Goan village, okay, where there is traditions and culture of old time still exist, okay. It is not changed, it is not modernized, okay, and it has an important place in his society, okay. Who has this important place in his society? Yeah, tell anyone who still has an important place in his society. Baker of Goa. Yeah, yeah. Okay, Goan baker. Sir, Yeah, baker. baker of Goa. Correct answer. And now proceed. Okay, see, our elders are often heard reminiscing nostalgically. What is meaning of nostalgically? Who can tell? What is the meaning of nostalgically? Yeah, any student? Meaning of nostalgically. Yeah, be quick. No one. Remembering past with. Sir, thinking about Okay, listen it now. Nostalgically means, okay, remembering past with sadness. When you remember anything of past and you feel sad, that is called nostalgic feeling. Okay, they reminiscing means remembering, okay, nostalgically, okay, nostalgically you have understood what feeling of called nostalgic about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread, their pieces of bread. Those eaters of loaves might have vanished. Vanished means disappeared, not existing. Vanished means not existing, disappeared, but the makers are still there. That bakers are still there in Goa. We still have amongst us the mixers, okay? And there comes a question, okay? This question can be asked, ki, what are the elders in Goa nostalgic about? And bread making is still popular in Goa. How do you know? How do you know that bread making is still popular in Goa? That question's answer you can get in these lines. So these lines are important for you. See carefully. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. And how do you know that makers are still there? See, its answer is here. We still have amongst us the mixers, that equipment which is used to make bread, that loaves, okay, the molders, and those who bake the loaves. Those who bake means the bakers. Those aged old time tested furnace still exist. Furnace means fireplace. There is a special type of fireplace in which they bake the loaves of bread. Okay, for loaves of bread, they make a special type of fireplace, a special type of furnace. The fire in the furnace has not yet been extinguished. Extinguished means finished. वो आग अभी बुझी नहीं है. That fire is still burning, okay, in the furnace of bakers. The third and jingle of the traditional bakers bamboo. जो बेकर्स थे वो जब लोब्स को बेचने के लिए निकलते थे तो अपने पास एक बैम्बू लिए रहते थे, उसमें घुघरू बंधे होते थे, वो जिंगल करता था और उसे वो बार बार थड करते रहते थे, जमीन पे धम धम मारते थे जिससे कि आवाज निकलती थी.
ठीक है। तो पहले जो तमाम चीजें बेचने के लिए जो उसके सेलर्स थे ट्रेडिशनली, दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को याद है बचपन में कुल्फी वाला आता तो घंटी बजाता था टन टन टन, एक डोरी से खींच के। वो बर्फ बेचने वाला आता था तो पो पो एक दबाने से आवाज निकलती थी, उसको बजाता था। तो वो ट्रेडिशनली वे विभिन्न तरीकों से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते थे और चीजों को बेचते थे। अब वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन जो गोवा में वो बेकर्स थे वो भी एक बैम्बू लेकर चलते थे और उस बैम्बू में जिंगल करता था वो। ठीक है, उसमें कुछ बेल्स लगे होते थे, वो बेल्स जिंगल करते थे और उसको थड करते थे। तो बच्चों को दूर से या सबको दूर से ही पता चल जाता था कि बेकर्स आ रहे हैं और वे लोव्स ऑफ ब्रेड दे विल सेल। ओके, तो वो चीजें उनको बहुत याद आ रही है, नॉस्टैल्जिकली दे फील दैट कि ऐसा होता था। ओके, हेराल्डिंग, हेराल्डिंग मीन्स प्रोक्लेम, डिक्लेयर। वो बैम्बो का जो जिंगल और थट था वो हेराल्ड करता था, डिक्लेयर करता था कि क्या डिक्लेयर करता था? हिज येट बीन, हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। ओके, अभी भी कहीं कहीं पर है, सब जगह तो अब नहीं है, बट ऑन सम प्लेसेस इट इज। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. Profession means business. Okay, their occupation. तो उनका जो ऑक्यूपेशन था, फादर नहीं रहे तो उनके बेटों ने उस ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन किया, आगे बढ़ाया और उसी तरह से बैम्बो पर जिंगल करते हुए, थड करते हुए लोव्स दे स्टिल सेल इन द सम विलेजेस ऑफ गोवा। This tradition is still exists there in Goa. These bakers are even today known as padder in Goa. उनका एक स्पेशल नेम होता था, जो बेकर्स थे जो लोब्स को बैम्बो को थट करते हुए बेचते थे घूम घूम कर, उनको क्या कहते थे? पेडर्स। You should remember this. The bakers of Goa are called what? Yeah, the bakers of Goa called what? Padder. Yeah, very good. Pedders. See the next paragraph. During our childhood in Goa, the bakers used to be our friend. तो बेकर्स जो होते थे वो बच्चों के फ्रेंड हुआ करते थे। ठीक है ना? क्यों हुआ करते थे ये डिस्क्राइब्ड है आगे, आप देखो उसको एंड कीप इट रिमेंबर आल्सो। कंपेनियन एंड गाइड, दे वर नॉट ओनली फ्रेंड, दे वर कंपेनियन ऑफ देम, दे वर गाइड ऑफ देम। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार आते थे। एक बार सुबह, सुबह जाते हुए, फिर जब उनका बैग इम्पटी हो जाता था, बास्केट जिसमें वो लोब्स रखे रहते थे, तो उसी रास्ते वापस भी आते थे। तो 2 बार मुलाकात होती थी उनसे। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर इम्पटाइंग। इम्पटाइंग मींस फिनिशिंग। ओके, after selling off the loaves their basket becomes empty. Okay, blank. His huge basket, the jingling thud of his bamboo, woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आते थे, उनकी थड और जिंगलिंग को सुन के बच्चों की नींद खुल जाती थी और दौड़ कर जाते थे कि ब्रेड वाला आ गए, ब्रेड वाले अंकल आ गए। वो पहुंच जाते थे वहां पे। Why was it so? क्वेश्चन ये पूछ रहा है राइटर, ऐसा क्यों था? हम सुबह क्यों दौड़ के जाते थे? क्या वो ब्रेड अगर हम दौड़ के नहीं जाते तो नहीं मिलता? ऐसा नहीं था, ब्रेड तो आता ही था। ठीक है, was it for love of loaf? Loaf means loaves of bread. Not at all. He is giving answer also. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए हम लोग नहीं दौड़ के जाते थे। किस लिए जाते थे? He is telling, you listen. The loaves were bought by some Paskin and Bastin. इसका मतलब किसी भी दुकान से लोब्स ऑफ ब्रेड हम खरीद सकते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, वो भी ला सकती थी। What we longed for, meaning of longed for, tell any of you, what is meaning for longed for? Any of you? What is meaning of longed for? No one. Highly desire. लॉन्ग फॉर मीन्स क्या होता है?
हाईली डिजायर्ड, किसी की बहुत इच्छा रखना, ठीक है, किसी के लिए बहुत लालच मन में रखना, वो आपके बहुत जरूरी हो आपके लिए, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर. ओके, हाईली डिजायर्ड फॉर. Okay, we long for those bread bangles which we choose carefully. ठीक है, लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए नहीं जाते थे तो आ जाता था, वो ब्रेड जब बनाते थे कुछ बैंगल्स बन जाते थे, वो उनके लिए दौड़ के जाते थे उन बैंगल्स को लेने के लिए. ठीक है, उन बैंगल्स को लेने के लिए वो वहां पर जाते थे. समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी वो बहुत स्पेशल होता था. तो समटाइम दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड कि व्हाई डज द चिल्ड्रन रन टू द बेकर इन द मॉर्निंग. तो देयर यू हैव टू राइट, they go there for that bread bangles which they choose very carefully, and sometime that bangle were sweet bread of special make. Is it clear? Now come on, next paragraph. The baker made his musical entry. Musical entry means what? Who can tell? What is musical entry? What is musical entry? Tell. Speak. सर गाते हुए आता था. No, very wrong. No, no, no. The coming with baker's bamboo. Half answer, half correct answer. Any more? Coming with making sound by his bamboo. Yeah. You should answer completely now. When they come with thud and jingle bells of bamboo. थर्ड, वो जो थर्ड धम धम की आवाज आती थी, जमीन पे पटकते थे, उसमें जो बेल्स लगे थे वो बेल्स जिंगल करते थे, वो म्यूजिकल एंट्री थी. मीन्स विथ जिंगल एंड थर्ड ऑफ बैम्बू. प्रिया, तुमने केवल बैम्बू बोला था, तो केवल बैम्बू नहीं करेक्ट है, विथ थर्ड एंड जिंगल बेल्स ऑफ बैम्बू. ओके, दैट इज म्यूजिकल एंट्री. जब वो आते थे थर्ड धम धम और झन झन गुगरू, दैट इज म्यूजिकल एंट्री. और इसी म्यूजिकल एंट्री से उनकी नींद खुलती थी. ओके, और वो पहुंचते थे लेने ब्रेड को. ओके, म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ जिंगल झैंग. आगे लिखा भी था, उस लाइन को जरा सा आगे आप लोग पढ़े होते तो आंसर दे देते. ठीक है, सीन विथ झांग झांग. झांग झांग आवाज आती थी उन बेल्स से, जो बेल्स उनके बैम्बू पर लगा हुआ था. साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टॉफ, बैम्बू रॉड. ओके, वन हैड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. एक हाथ से वो बास्केट को संभालते थे, दूसरे से बैंग करते थे. बैंग बैंग करते थे किसको? अपने बैम्बू को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पे. दैट वाज देयर म्यूजिकल एंट्री. ठीक है, he would greet the lady of the house with good morning. ओके, मॉर्निंग में आते थे, गुड मॉर्निंग बोल के घर की जो लेडीज होती थी उनको ग्रीट करते थे. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन वर्टिकल बैम्बू. बैम्बू को वर्टिकली करके उस पे रख देते थे, थोड़ा हाइटेड हो जाता था, बच्चों को नहीं दिखता था वो, तो बच्चे क्या जुगाड़ करते थे उसको देखने के लिए. देखिए आगे. We could be pushed aside with mild rebuke. जो घर की जो औरतें थी, उनकी आंटी, मम्मी या जो भी रहती हो, वो उनको डांट के दूर हटा देती. हटो हटो, तुम लोग दूर हटो, पीछे हटो, हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं. ठीक है ना. लेकिन वो लोग मानते नहीं थे, बच्चा लोग मानता नहीं था, घर वाले डांटते थे, हटो हटो, पीछे हटो. अभी आपके घर पे भी कोई कुछ बेचने आता होगा तो आप लोग घेर लेते होंगे चारों तरफ से. हाँ, कोई साड़ी बेचने वाला आ गया, कोई सामान बेचने वाला आ गया, तो आप लोग घेर लेते हैं ना चारों तरफ से. मम्मी लोग डांट के भगाती है ना, हटो हटो हटो, पीछे हटो. लेकिन आप लोग हट जाते हैं क्या? हटते नहीं है ना, और बीच में से छुप के झांक के देखते रहते हैं. तो वो भी वैसे ही करते थे. ओके, एंड लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट बट वी वुड नॉट गिव अप.
hello, but they would not give up. Give up means leave. वो छोड़ नहीं देते थे, वो चले नहीं जाते थे. Okay, and see once again from here, we kids would be pushed aside with a mild means not very harsh, okay, gentle rebuke you can say, हल्का फुल्का डांट के हटाते थे. And the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up, we would not leave, okay. We would climb a bench पे चढ़ जाते थे. Or parapet means wall at the end of the roof, जिसको मुडेर कहते हैं, छज्जा कहते हैं, उस पे चढ़ के झांकते थे, ठीक है ना. एंड पीप मीन्स होता है झांकना, ऐसे झांकना. एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, किसी प्रकार से जैसे तैसे बास्केट में हम लोग झांक ही लेते थे, कितनों लोग डांट के भगाए. ओके, आई कैन स्टिल रिकॉल मीन्स रिमेंबर, द नरेटर इज स्टिल रिमेंबरिंग दैट डे. ओके, द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, वो जो लोफ ऑफ ब्रेड था, जो पीसेस ऑफ ब्रेड थे, जो स्पेशल थे, उनके स्मेल को, उनके फ्रेग्रेंस को अभी भी वो याद करता है. क्या खुशबू थी, वाह वाह वाह, मजा आ जाता था. ठीक है, वो बेकर ही आता था, वो पैडर, उनको पैडर बोलते थे, ठीक है ना, पैडर बोलते थे ना. जब वो पैडर आते थे तो उनका घर एक अजीब सी महक से भर जाता था. ओके, the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. बच्चे उसके बैंगल्स लेते थे, जो कटिंग्स होते थे, ठीक है ना, जो चूड़ी की तरह बन के रहता था, ठीक है, गोल गोल. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. इसके बाद बहुत बेचैनी हो जाती थी जब वो आ जाता था खरीद के. इसके बाद वो वेट नहीं करते थे कि मुंह धोएं, बहुत जल्दी जल्दी करते थे ना, अच्छे से नहीं मुंह धोते थे. फिर उसके लिए वो आर्गुमेंट्स भी देते थे. क्या आर्गुमेंट्स देते थे, देखिए. एंड व्हाई शुड वी, क्यों मुंह धोएं, जल्दी से खाएं ना, हाँ, देर नहीं हो, फटाक से टूट पड़े, आक्रमण, अटैक बोल के तुरंत खाते थे, ठीक है ना. Okay, see once again. We would climb up bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. Okay, loaves for the elders and bangles for the children. Okay, then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. Okay, and why should we, he was questioning himself कि हम क्यों ऐसा करें, क्यों खूब मेहनत से खूब अच्छे से ब्रश करें, मुंह धोएं, जरूरत क्या है इसकी. We would take the trouble of plucking mango leaves for the mouth brush. जैसे ठीक है, जैसे आपके यहाँ कभी कभी गांव में लोग क्या करते हैं, ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट या ये सब केमिकल्स नहीं यूज करते, वो नीम के दातून, जामुन के दातून या फिर और चीजें तोड़ के उससे ब्रश करते हैं, ठीक है, अपने दांतों को साफ करते हैं. तो वहां पे गोवा में ट्रेडिशन है, वो मैंगो लीव्स को तोड़ के उसका जो डंठल मोटा मोटा होता है उससे अपने टीथ को क्लीन करते थे. तो कौन जाएगा मैंगो लीव्स तोड़ने, फिर उसके डंठल को चबा चबा के ब्रश बनाने, फिर उससे ब्रश करने. इस तो बहुत टाइम टेकिंग है, तब तक लोब्स तो ठंडा हो जाएगा, जल्दी से टूट पड़ो उस पे, ठीक है. एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, जरूरी क्यों है. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर तो कभी ब्रश नहीं करता, ठीक है. क्या उसके दांत मजबूत नहीं होते, वो तो बड़े बड़े जानवरों के मांस को चीर देता है, उसके दांत बहुत मजबूत होते हैं. अगर ब्रश करने से मजबूत होते दांत तो टाइगर भी रोज ब्रश करता, तब उसका दांत मजबूत होता, तब वो हंट कर पाता. तो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है. हार्टी कुड वॉश एंड क्लीप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. चाय पी लो, चाय से तो जितने जर्म होंगे सब जल के मर जाएंगे, ठीक है. क्या जरूरत है ब्रश व्रश करने का. ब्रश में तो आजकल बाबा रामदेव इतने विटामिन और तमाम औषधियां डाल दिए हैं कि वो जर्म और मोटे तगड़े हो जाएंगे उनको खा खा के.
उसमें लौंग डाल दिए हैं और क्या क्या डाल दिए हैं, तुलसी डाल दिए हैं, तो उनसे ब्रश करोगे तो कीटाणु भी तो वो ब्रश पाए, वो सारे औषधि पाएंगे ना, वो तो खा खा के उन औषधियों को और मजबूत हो जाएंगे, तो सांप कहाँ होगा? वो तो और हेल्दी हो जाएंगे ना फिर। तो ये सब आर्गुमेंट्स, ये दिस इज फन, नाटीनेस, ये रियल आर्गुमेंट्स नहीं है, लेकिन मजे के लिए, मस्ती के लिए वो ऐसे आर्गुमेंट्स करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन है। व्हाट आर द एल्डर्स गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? दे वर नॉस्टैल्जिक अबाउट द those good old Portuguese days and the Portuguese and their famous loaves of bread. आपके चैप्टर का पहला लाइन ही है जो है, our elders are often hard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Okay. Second question है, is bread making still popular in Goa? Yeah, very popular. And how do you know that furnaces and molders and many are, you studied no in first paragraph? Okay, you should write all that things. What is the baker's call? Peddler. You know very well, peddler. When would the baker come every day? Early in the morning. Early in the morning, children awake by the third and jingling of their bamboo. Why did children run to meet him? किस लिए? और रीजन लिखा है, टू ब्रेड बैंगल्स विच आर दे चूज वेरी केयरफुली. ओके, नाउ सी नेक्स्ट, दिस पैराग्राफ इज आल्सो वेरी नाइस. मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. कोई भी ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस. मैरिज गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं होता था, वो बिल्कुल कोई उस मैरिज गिफ्ट्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता था अगर उसमें स्वीट ब्रेड एक होता था, लोब्स बेकर्स ही बनाते थे उसको, जिसको बोल कहते थे, वो ना दिया जाए. ठीक है, तो हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशन होता है. आपके यहाँ भी अब तो नहीं होता, लेकिन हम लोग के बचपन में जब कोई भी शादी होती तो उसमें ठोकवा न दिया जाए, खाजा न दिया जाए, और क्या क्या ढूंढा होता था वो न दिया जाए, तो उसके बिना शादी अधूरी मानी जाती थी. जब लड़की की विदाई होके आती थी तो गांव वाले वेट करते थे, गांव में बंटता भी था फिर सबके घर. तो वैसे भी कोई आता था, किसी के यहाँ कोई अपने मायके से या कहीं से आता था तो गांव में पूरे बंटता था. हम लोग खुद थे छोटे छोटे ले, ठीक है, कि जो ढूंढा होता था, ढूंढा या ठोकवा या खाजा, फिर सारे गांव में थोड़ा थोड़ा बंटता था. तो लोग पूछते थे कौन आया, तो बताते थे भाभी आई हैं, चाची आई हैं, आंटी आई हैं, तो फिर वो बंटता था. तो सारे ट्रेडिशन होते थे. तो गांव में बनने वाली चीजें जो गांव के लोगों के द्वारा बनाई जाती थी, इससे सभी लोग एक दूसरे से लिंक्ड रहते थे, सबका रोजी रोटी चलता था. ठीक है, सभी का व्यापार चलता था और सारी चीजें जरूरी होती थी, लोग लेते ही थे, तो कोई भूखमरी किसी को नहीं थी. तो वो समाज का जो ताना बाना था वो बहुत अच्छे ढंग से बुना हुआ था. लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन हो जाने के नाते और सभी लोग अब ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो गांव में बनाने वाले बेचारे, उनका सामान बिकता नहीं, वो भूखों मरते हैं, फिर वो अपने रोजगार को छोड़ देते हैं, वो भी शहरों की तरफ भागते हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें काफी बढ़ती हैं. पहले के लोग अनएम्प्लॉयड कोई नहीं था, सबके पास कोई न कोई रोजगार था, सब काम था, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे. वो ट्रेडिशंस, ओके, वो ट्रेडिशंस ऐसे बने हुए थे, किसी के बिना किसी का काम चलता नहीं था. ठीक है, सब एक दूसरे के लिए जरूरी थे. ये बातें थी. तो वही लिखा है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. तो मैरिज गिफ्ट किसके बिना मीनिंगलेस होते थे? ये आपको याद रखना होगा, स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. बोल नाम का एक स्वीट ब्रेड होता था, उसके बिना मीनिंगलेस होते थे. और क्या था? जस्ट एज पार्टी आर अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. बिना ब्रेड के कोई पार्टी होती ही नहीं थी. Not enough can be said to show how important the baker. Okay, see now. Not enough can be said to show how important, यानी ये कहने की जरूरत नहीं कि कितने इंपॉर्टेंट थे बेकर्स कितने इंपॉर्टेंट थे
ओके, बेकर्स कितने इंपॉर्टेंट थे ये बताने की जरूरत नहीं है. कैन बी फॉर अ विलेज. द लेडी ऑफ दोज हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट. अगर किसी के डॉटर का एंगेजमेंट रहता था तो सैंडविचेस बनाना जरूरी होता था. उसमें भी आपके ब्रेड की जरूरत है, बिना ब्रेड के सैंडविचेस नहीं बनते हैं. ठीक है ना. एंड केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस. क्रिसमस के लिए केक और बोलिनहास बहुत जरूरी होते थे, उसके लिए भी बेकर की जरूरत. तो ओके, तो बेकर्स की जरूरत हर हाल में उनको पड़ती थी, चाहे वो मैरिज हो, चाहे इंगेजमेंट हो, चाहे पार्टी हो. हर अवसर पर बेकर की जरूरत पड़ती थी. उनके डिशेज के नेम चेंज होते थे, कभी बोल यूज करते थे, कभी बोलिनहास यूज करते थे, कभी ब्रेड यूज करते थे, कभी सैंडविच यूज करते थे. अलग अलग अकेजन पर ब्रेड के बने बने अलग अलग आइटम्स यूज होते थे. लेकिन उन सब आइटम्स के लिए जरूरत किसकी होती थी? बेकर्स की. ठीक है, इसलिए बेकर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. तो देखिए, केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस as well as other festivals. Thus, the presence of bakers' furnace in the village is absolutely essential. Absolutely essential means बिल्कुल जरूरी. बिना बेकर के भट्टी के गांव का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैरिज में बेकर की जरूरत, पार्टी में बेकर की जरूरत, इंगेजमेंट में बेकर की जरूरत, फेस्टिवल्स में बेकर की जरूरत. तो वो होना ही होना है. कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें बेकर्स ना हो. ठीक है ना. द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर डिश नोन एज कबाई. पहले के समय में, राइटर के समय में नहीं. जो राइटर है इसके मम्मी डैडी के समय में, ठीक है, एक वो ड्रेस पहनते थे, उस ड्रेस का नाम था कबाई. आपको इसको याद रखना होगा कि व्हाट वाज नेम ऑफ दैट ड्रेस. Name of that dress was kabai. Okay, it was a single piece long frock reaching down the knees. घुटनों के नीचे तक एक पीस ड्रेस फ्रॉक की तरह होता था. In our childhood we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length once and longer than half pants. लेकिन राइटर के समय में उनका ड्रेस बदल गया. कबाई की जगह वो क्या पहनने लगे? एक शर्ट पहनने लगे. ठीक है, कबाई की जगह वो एक लगे और एक नीचे तक पैंट पहनने लगे वो. ठीक है, वो हो गया. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites comments. अगर आज भी कोई इस तरह का पैंट पहनता है जो घुटनों के नीचे तक होता है, तो लोग उसको कमेंट करते हैं. क्या कमेंट करते हैं? कि अरे इसने पैडर की तरह ड्रेस पहन रखा है, देखो पैडर लग रहा है. ठीक है. और द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. वो अपने बिल्स एट द एंड, अभी भी जो दूध वाले होते हैं घरों में दूध देते हैं और वो पैसा महीने के अंत में लेते हैं. ठीक है, उसी तरह से वो बेकर्स भी सबको ब्रेड देते रहते थे और पैसे कब कलेक्ट करते थे? एट द लास्ट ऑफ मंथ. ओके, मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड एंड सम वॉल इन पेंसिल. घर में जैसे आजकल कैलेंडर पे नोट कर देते हैं दूध का हिसाब, तो उस समय कैलेंडर नहीं था. दीवार पर ही पेंसिल से लिख देते थे कि इस दिन इतना ब्रेड लिया, इस दिन नागा हुआ. नागा अंडरस्टैंड? जिस दिन स्किप करते हैं, जिस दिन नहीं लेते, उसको गाँव में नागा करना बोलते हैं. ठीक है, तो उस दिन नहीं लिया तो आप बोलते हैं ना, देखो तुम 15 तारीख को दूध लाए थे, 16 को नहीं लाया था, तो 16 को नागा हो गया. ठीक है, अब वो 16 का पैसा नहीं मिलेगा, 17 को मिलेगा. तो वो नोट करते हैं ना, कहीं कहीं डायरी पे कोई नोट करता है, कोई कैलेंडर पे टिक करता है. तो उस समय कैसे करते थे? दीवाल पे करते थे. किससे करते थे? पेंसिल से. ऑन वॉल इन पेंसिल. इज इट क्लियर? बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज. ठीक है, पहले बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. द बेकर्स एंड हिज फैमिली दे वर स्टार्व्ड. ठीक है, जो
बेकर्स थे या फिर उनकी फैमिली थी, वो कभी भी स्टार्व नहीं करती थी, भूखों नहीं मरती थी। स्टार्व होता है भूखों मरना, ठीक है ना, वो कभी भी भूखों नहीं मरती थी। क्योंकि उनकी जरूरत हमेशा पड़ती थी, उनकी जरूरत हमेशा पड़ती थी, इसलिए वो हमेशा यूज होते थे। किसी के घर शादी हो, कोई फंक्शन हो, सब लोग जरूर से उसको यूज करते थे। एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वो सभी हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस, ठीक है ना। और उनका जो प्लम्प यानी खूब मोटा ताजा शरीर जो होता था, वो इसका गवाह था, टेस्टिमनी था। टेस्टिमनी पता एविडेंस, प्रमाण, ठीक है ना। यानी कि वो काफी हेल्दी होते थे, दुबले पतले, कोई भी बेकर खूब दुबला पतला कांटा जैसा नहीं होता था, सब खूब मोटे ताजे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि खूब खुश हैं और वो प्रॉस्पर हैं, ठीक है। कोई भूखों मरने वाला आदमी खूब मोटा ताजा हो सकता है क्या, ठीक है। यानी खूब पैसा अच्छा कमाते थे वो, क्योंकि उनकी हर समय जरूरत पड़ती थी। तो ये बातें थी। Even today, any person with a jackfruit-like physique appearance easily compared to a baker. आज भी अगर कोई खूब मोटा ताजा आदमी है तो उसको किससे कंपेयर करते हैं, बेकर से। अरे भाई बेकर हो क्या, इतने फूल कैसे गए तुम, इतने मोटे कैसे हो गए। तो जैकफ्रूट टाइप का मतलब मोटा ताजा, प्लम्प फिजिक। जैकफ्रूट का मतलब क्या है, कटहल जैसा, ठीक है, खूब हेल्दी फिजिक। ये देखिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक को आप देखिए। मैच द फॉलोइंग व्हाट इज मस्ट। मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट में क्या देते थे, बोलिए, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, ठीक है ना, ओके। और फॉर अ पार्टी और फीस्ट क्या यूज करते थे, ब्रेड, ब्रेड, ओके। फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट क्या यूज करते थे, या डॉटर एंगेजमेंट, Sandwiches. Sandwiches. सैंडविचेस, वेरी गुड। और क्रिसमस के लिए क्या यूज करते थे, केक्स विथ बोली, Cake and Cake. bolignans. या ठीक है ना। तो किस ओकेजन पे क्या यूज होता था वो आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द बेकर्स वियर, वो क्या वियर करते थे, उसका क्या नाम था, कबाई, ठीक है ना, क्या वियर करते थे वो, कबाई। एंड पोर्तुगीज डेज में व्हेन द ऑथर वाज यंग, उस समय शर्ट एंड अ पैंट व्हिच वाज मोर लेंथी देन नीज, नीज से भी नीचे तक लंबा होता था। Who invites the comment he's dressed like a pedder? The any person who wear any pant which is lengthy more than knees, they invite that comment कि he is like pedder because pedders wear that type of dress. Clear? Very very obvious है, बहुत स्पष्ट है ये कि पेडर्स वैसा ड्रेस पहनते थे, इससे अगर कोई वैसा पहनता था तो उसको कहते थे कि भाई पेडर की तरह लग रहा है, ठीक है ना। Where were monthly accounts of the baker recorded on wall in pencil? ठीक है ना, कहाँ पे मंथली रिकॉर्ड लिखा जाता था ये लेन देन का, पेंसिल से वॉल पे। व्हाट डज जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस, जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस प्लम्प फिजिक, प्लम्प फिजिक, ओके ओके। अब आपका ये एक्सरसाइजेस इसके जो हैं, फिर कम ऑन एक्सरसाइजेस। Which of these statements are correct? इसमें देखिए आपका मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ करेक्ट है, ऑल अदर्स आर रॉन्ग, यू डू दिस। तो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ब्रेड, ये जो इज ब्रेड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा, यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, ओके। हाउ डू यू नो दिस, बिकॉज मैरिज, क्रिसमस, पार्टी, फेस्टिवल, एंगेजमेंट, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट बेकर। वो सारा आप डिटेल में लिख देना। Understood? All understood, no? So they are important for Goa. और क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the tone of the author when he says the following? नीचे की जो चीजें हैं उसको जब बोलता है ऑथर तो उसका टोन क्या था। The third and jingle of traditional bakers bamboo can still be heard in some places. ये नॉस्टैल्जिक है, ये क्या है, नॉस्टैल्जिक है, पास्ट को याद करके सैड हो रहा है कि अब वो चीजें नहीं है। सेकंड देखिए,
Maybe the father is not alive, but the son still carries the family profession. Hopeful. It is hopeful. Third is I still recall the typical fragrance of. ये भी नॉस्टैल्जिकल है क्योंकि वो उस फ्रेगनेंस को याद कर रहा है, पास्ट को याद करके सैड हो रहा है, तो नॉस्टैल्जिक है, ठीक है ना. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, ये क्या है, ये नॉटी है, ठीक है ना, कि टाइगर ब्रश नहीं करता है, दिस दैट. और केक्स एंड बोलिहांस आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, ये क्या है, सैड, होपफुल, मैटर ऑफ फैक्ट. यस, आंसर इट. Matter of fact.